हम लोग सूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को कर रहे हैं। क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द मास कैपिटल एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, यानी फाइंड द मास ऑफ दिस हैंगिंग ब्लॉक which will prevent the smaller block slipping over triangular block, assuming all the surface to be smooth, string as well as pulley line. Now the question is कि how we are going to solve the problem. तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि prevent the smaller block slipping over this triangular block, यानी find out the mass of this hanging block which will prevent this smaller block slipping over this triangular block. तो हमारे पास what the condition has been given to us. तो सबसे पहले मैंने कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। कंडीशन आंसर देते समय कि smaller block do not slip on which block? On this triangular block, on triangular. तो इधर हमारे पास एक कंपोनेंट कौन सा लगेगा? mg sin थीटा, and due to this component this block has tendency to slip downward. लेकिन कंडीशन हमारा क्या दिया है कि this smaller block does not slip on this triangular block. थिंक कीजिए कि अगर मैं सिस्टम को रिलीज किया तो जिस एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, with same acceleration this triangular block is going to move in this direction. As a result, this smaller block finds itself in moving frame, so it will experience a pseudo force in which direction? So opposite to the direction of motion, and magnitude of this pseudo force is generally equal to mass into acceleration of the frame, mass of this block and acceleration of this frame. चूंकि this MA is neither acting in x direction, क्योंकि इसका मोशन इधर है तो इधर x डायरेक्शन, मोशन के परपेंडिकुलर में y डायरेक्शन, so this MA should be resolved into two component. अब MA को हम लोग दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? A थीटा, तो this angle will be थीटा, इस डायरेक्शन में हमारा एक कंपोनेंट and that component is MA cos थीटा, और दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में that is equal to MA sin थीटा, और मेंटली इसका एग्जिस्टेंस खत्म, इसको हमने कंपोनेंट में थोड़ा इसको रखा। तो नाउ सिंस दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो यहां से हमारे पास क्या है कि mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू ma cos थीटा, और दिस m get cancelled and therefore a is generally equal to g tan थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, this force must be equal to this force ma sin theta plus mg cos theta. Also, हमारे पास क्या है? Normal force is generally equal to mg cos theta plus ma sin theta. And this ma, this a is nothing but we have g tan theta. तो जैसे ही हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो we get mg cos theta प्लस ma, a की जगह पर मैं लिख सकता हूं g, और tan theta can be written as sin theta upon cos theta into this sin theta. Okay? Now जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो this n is generally equal to mg यहाँ पर भी इसको कॉमन ले लिया तो this will become cos square theta plus sin square theta upon cos theta, and this sin square theta plus cos square theta is generally equal to 1, so n is generally equal to mg upon cos theta, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। But what we have to find out? We have to find out the mass of hanging block. तो now कंडीशन से we are able to form two equation. एक इक्वेशन हमारा a इक्वल टू g tan थीटा, और सेकंड इक्वेशन हमने n इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। नाउ एक कंडीशन को हमने अप्लाई किया। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ दिस हैंगिंग ब्लॉक। नाउ लेट अस सॉल्व फ्रॉम दिस पोजीशन। चूंकि ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg will act vertically downward। एक स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स will act in this direction। चूंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स कैपिटल M
नीचे की तरफ तो दिस mg minus t must be equal to mass into acceleration, और चूंकि हमें मास चाहिए तो मास को एक तरफ लेके आए, तो g minus a is equal to t and therefore mass of this hanging block is generally equal to t g minus a, and let this be equation third. मास हम आसानी से निकाल सकते हैं once we are able to calculate acceleration as well as value of t. A we already know. Now the problem reduced to calculate t. तो इस ब्लॉक स्प्रिंग का एक एंड इससे अटैच है, तो t को कैलकुलेट करने के लिए आप चेक कीजिए कि अदर एंड इज कनेक्टेड टू विच ब्लॉक. तो हम लोग देख रहे हैं कि अदर एंड इज कनेक्टेड टू दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक. तो नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक. तो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम ऑन ट्रायंगुलर ब्लॉक. तो यहां से फ्री बॉडी डायग्राम ऑन m डैश. तो इमीडिएटली हमने m डैश को यहां अलग कर दिया विद सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग. नाउ लेट्स डू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दैट. जैसे ही इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स m डैश g डाउनवर्ड, a कांटेक्ट में है तो m डैश अपवर्ड. एट द सेम टाइम चूंकि इस ट्रायंगुलर ब्लॉक ने इस ब्लॉक के ऊपर, यानी यह ट्रायंगुलर ब्लॉक ने इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया है, तो ये भी ब्लॉक इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ एक्सर्ट करेगा. तो यह नॉर्मल फोर्स n इधर, स्ट्रिंग पकड़ा फुल इधर, तो टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. चूंकि इस ब्लॉक का मोशन इधर है a, तो मैंने इधर x एक्सिस लिया और ये हमारे पास y एक्सिस, यानी we need to resolve this n into two component. और n को दो कंपोनेंट में ले रहे हैं, तो एक कंपोनेंट हमारा इधर और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन. चूंकि एक थीटा, दिस इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. तो n को अब हमें दो कंपोनेंट में, तो इधर हमारे पास n sin थीटा और इस तरफ हमारा क्या हो गया n cos थीटा, और मेंटली इसका डिस्टेंस. नाउ मोशन के डायरेक्शन में तो लिख सकते हैं t minus n sin थीटा is generally equal to mass into acceleration. अब हमारे पास a और n दोनों का वैल्यू मालूम है. a का वैल्यू हमारे पास g tan थीटा और n का वैल्यू हमारे पास क्या है mg upon cos थीटा. तो t माइनस n के जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, n के जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज mg cos थीटा. तो t mg cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू m डैश, और a के जगह पर हम g tan थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दैट इज जनरली इक्वल टू g tan थीटा. नाउ t इज जनरली इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा. तो t माइनस mg tan थीटा इक्वल टू m डैश g tan थीटा. t इज जनरली इक्वल टू, यहां से t इज जनरली इक्वल टू, इस टर्म को उधर लेके चले गए, तो दैट इज g tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या हो गया m डैश और प्लस स्मॉल m, एंड दिस इज इक्वेशन 4. अब देखिए हमें मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक चाहिए, तो unknown quantity is TNA. A we have calculated g tan theta, and now we have also calculated T, and T is generally equal to g tan theta m dash plus small m. Now put the value of 4 as well as first in equation third. So put value of 4 and third in equation 1, in equation 3. तो जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करें m इक्वल टू t के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं g tan थीटा m डैश प्लस स्मॉल m अपॉन g माइनस, और a का वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू g tan थीटा. हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में g tan थीटा को कॉमन ले लिए, तो g tan थीटा यहां पर कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m, और यहां से हमने g tan थीटा को कॉमन ले लिया, तो g tan थीटा, तो यहां पर g tan थीटा यानी नीचे tan थीटा है, दैट विल बिकम cot थीटा माइनस
1, this g tan theta, g tan theta get cancelled, and therefore mass of this hanging block will become m dash plus a small m cot theta minus 1. Then what is the mass of this hanging block? हमने यहाँ से g tan theta को कॉमन लिया है, तो this will become cot theta minus 1. Then what is the mass of this hanging block? So now the mass of this hanging block is m dash plus m cot theta minus 1. Clear? तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन ये था कि find out the mass of the hanging block which will prevent the smaller block slipping over this triangular block, assuming all the surface to be smooth, string as well as pulley is light. तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कंडीशन से हमने नॉन क्वांटिटी को निकाला और